Hello, friends. A very warm welcome in General Studies Paper 2 on Ansarkari, where we are going to pick up 11 such questions which we have written from such a perspective. May not be the best, but they are ideal and they are suitable when we see and understand the learning in the preparation mode. So that's how it becomes important. And let's discuss and try to have certain kind of conclusions, which is really going to help you in the mains examination and overall preparation. First question says that the Indian party system. Okay, the Indian party system. First, you must be aware: is there any formal party system, or this is just a metaphor? Indian party system is passing through a phase of transition, which looks to be full of contradiction and paradoxes. A very beautiful question, which cannot be obviously written in 150 or 200 words completely. But then this is a completely unconventional, out of the box question which if written from your own understanding and from your own conclusions, if you have done newspapers and if you have done our, like the way we have said always in our programs, that you have to be an honest, sincere and detached aspirant, तो आप इसका आंसर बहुत अच्छा लिख पाएंगे. पहले हम देखते हैं लिखा क्या है, and then I'll try to give some points which may be helpful. India follows a multi-party system symbolic of idea, the unity in diversity as reflected by the ideologies of parties in India that has transitioned from coalition politics to single party majority form 2014. I think introduction में कोई problem नहीं है. Introduction ने पूरा बढ़िया से एक तरीके को पूरा पटक के रख दिया. The contradictions and paradoxes in this transition, absence of strong alternative in the form of opposition. आप पहले ले आए, लेकिन ये opposition एक कोई पार्टी नहीं है. आपको पार्टी पे बात करनी है. तो आप कहते हैं कि one party becomes so powerful that it leads the narrative. पार्टी, ऑपोजिशन तो ग्रुप ऑफ पार्टीज भी हो सकता है ना. तो पार्टी की बात करनी है. डिफरेंट पार्टीज एट नेशनल लेवल हैव फेल्ड टू क्रिएट ए विजनरी. आप अब हम उन पार्टी के ना तो हम मेंबर हैं, और उन पार्टी को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो भी हमारी डेमोक्रेसी में कहा जाता है, चाहे एक वोट कोई दे, वो वोट उतना ही कीमती है जितने लाख वोट है. तो हम ये नहीं कह सकते वो फेल हो गए. और हम आपको ये कहना है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, वो जो विजन है, उनके लोगों का जो विजन है, वो मेजोरिटी का विजन नहीं हो सकता है. तो आपने जो कहा विजनरी रिटोरिक, विजनरी और रिटोरिक दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड हो गए. तो आपको बताना चाहिए था कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एट नेशनल लेवल, they need to match the narrative of the party at the party in power. Basically the party in power, contradiction or paradox क्या है कि party in power is both the government and it is the opposition also in so many ways. It sets the narrative and then it is it down, certain kind of problem comes up, then it comes up from within all this, within the structure. उसमें आप इंटरनल डेमोक्रेसी की बात भी कर सकते हो. पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है ना ट्रांजिशन में. इफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सीन टू बी ऑन, ये वर्ड भी हम बिल्कुल नहीं लिख सकते. इफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी आप कहना चाह रहे हो कि जो मतलब जो हमारा संसदीय प्रजातंत्र है वो ही डिक्लाइन पे जा रहा है. ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया. आप ये कहते हैं कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो एसेंशियल कन्वेंशनल फीचर्स हैं, उनको प्रेजेंट टाइम में हम नहीं देख पाते कि सारे फीचर्स वो पूरे होते हैं. ये आप बोल सकते हो. बस वो एक तरीके का एक कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भी है, लेकिन एक ही पार्टी की सारी बात हो रही है. जैसा आपने लिखा भी है, सिंगल मेजोरिटी पार्टी एंजॉयज एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस. क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट्स इज इरोडिंग. सच हो सकता है, बिल्कुल सच, लेकिन अगेन पॉलिटिकल पार्टीज इन ट्रांजिशन की बात हो रही है. तो आपको रीजनल पार्टी की बात करनी चाहिए, आपको स्टेट लेवल पार्टी की बात करनी चाहिए. आपको आम आदमी पार्टी जो कुछ नहीं थी वो कैसे नेशनल पार्टी बनी, जैसे एक बात है कि एग्जाम्पल है वो कि कैसे हमारे यहाँ कितना गजब की बात है कि अगर एक पॉलिटिकल पावर, एक पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा पावर है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को अपोजिशन देने के लिए कन्वेंशनल जो पॉलिटिकल पार्टी है वो नहीं चैलेंज कर पाई. एक और आउट ऑफ आउट ऑफ सिटीजन अवेयरनेस, आउट ऑफ सिटीजन चार्ट, आउट ऑफ सिटीजन मूवमेंट एक पार्टी निकल के आती है. तो कितना बढ़िया स्कोप है हमारे हिंदुस्तान में. द्रविडियन जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ दो पार्टी का ही है, वही दो पार्टी सदी से चलती आई है. वहां तीसरी पार्टी का सेंटर में होने के बावजूद कोई स्कोप नहीं है. आप समझे. तो ये जो है ना, ये ट्रांजिशन हमें दिखाना है. हमें ये नहीं बोलना
कि आप पार्लियामेंट में लेके चले गए इसको। ये बात हो रही थी पॉलिटिकल पार्टीज की, तो पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल पार्टीज का जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो एक जैसे हो गए, और मैनिफेस्टो एक जैसे हो गए हैं, और हर एक को पावर कैप्चर करने का शौक है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता उनमें डिस्क्रिमिनेट कर देती है। इसलिए मैंने कहा था ना, क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है। प्रेजेंस ऑफ एन इफेक्टिव ऑपोजिशन इन डेमोक्रेसी इज क्रूशियल एंड नेसेसिटी फॉर इट्स आइडियल फंक्शनिंग। बिल्कुल सही बात है। रिक्वायर्स इंटर, देखो आप लेके आए अब, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, इलेक्शन मैनिफेस्टोज, रेवड़ी कल्चर, criminalization of politics must be stopped, self disclosure of assets on website। तो आई थिंक वंडरफुल पॉइंट्स, ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट, बट देन वही वाली बात है, क्वेश्चन देखो आपका क्या कहा था। क्वेश्चन आपका कह रहा था कि इंडियन पार्टी सिस्टम इज पासिंग थ्रू ए फेज ऑफ ट्रांजिशन विच लुक्स टू बी फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तरफ इतनी बड़ी, एक तरफ छोटी। पैराडॉक्स है कि आप ही इतने बड़े हो और आप बोलते हो मैं सब कुछ करूंगा, फिर भी आप चेंज नहीं, आप कहते हो कि मैं क्या करूं, कांग्रेस खराब है। ये पैराडॉक्स हो गया। सब कुछ आपके हाथ में आ गया, फिर भी आप नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हो मुझे एक बार पावर दे दो, मैं ये कर दूंगा, लेकिन पावर तो आ गया, आपने किया तो नहीं। पार्टी, पार्टी, बात आप समझे? जी सर। तो पार्टी पे फोकस करना था, पॉलिटिकल पार्टी, इंडियन पार्टी सिस्टम पे, ना कि आप पार्लियामेंट पे फोकस नहीं करना। पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू बात करनी थी, फंडिंग पे बात करनी थी, कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके सुप्रीम कोर्ट को हाथ जोड़ के खत्म करने पड़े। हर पार्टी कहती है कि वी आर फेयर, और हर पार्टी है वैसी ही है फिर। तो वो कुछ बातें आप लिखते तो आई थिंक और आनंद आता। जी बाकी सर। हम डिस्कस करेंगे। Exercise of CAG's power in relation to the accounts of the Union and State is derived from Article 149 of the Constitution. Discuss whether audit of government's policy implementation could amount to be overstepping its own jurisdiction. The second part of the question is very, very important and crucial. That audit of government's policy implementation could amount to overstepping its own jurisdiction. यानी कि जो आर्टिकल 149 है, जब हमें वो अच्छे से पता होगा तो आप पार्ट नंबर 2 ऑफ द क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एड्रेस कर पाओगे। Watchdog of government's accounts, their compliance with the regulatory provisions, which indirectly includes audit of government's policy implementation। बहुत सही बात है। Overstepping will fulfill the objectives of a competitor general। नमामि गंगे program still couldn't meet the desired objectives fully। CAG's प्लानिंग या CAG's ऑब्जेक्टिव, जो CAG ने जो क्या बोला, फिजिकल प्रूडेंस होनी चाहिए। Aligning and assessing the fiscal needs through CAG thus help in prevention of cost over cost overruns and increase utilization of स्कार्स फंड्स इफेक्टिवली। इसका भी एक एग्जांपल दे देते हैं आप, स्टेट लेवल के ऊपर भी क्या बात करता है, कहीं पे जब आदमी, जब सरकार गलत पैसा लगा देती है। बूस्ट ट्रांसपेरेंसी ऑफ वर्किंग इन एन एक्स एंटी मैनर बिफोर द प्रॉब्लम इन्फ्लेट्स। वेरी ट्रू, इसका भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे केरला गवर्नमेंट का बोल लो आप, सिक्किम गवर्नमेंट का बोल लो, किसी का भी एग्जांपल दे दो। Although it is seen that CAG in India has remained limited to audit general more often, therefore auditing of policies will not be overstepping, rather will act as complementary tool or role to further the objective of good governance। I think well written, very good flow, good points, and but bringing examples is only going to give us a lot more what I should say, clinching of the answer. Otherwise it's definitely helping us to move towards interview. Discuss each adjective attached with the word republic in the preamble. Are they defendable in the present circumstances? India is a republic, head of state, elected representative of people's aspirations specified by the preamble. Following adjectives: sovereign, an independent nation with no third party intervention, thus autonomous, as seen during India's opposition to China's BRI, CPEC passing through Pakistan occupied Kashmir। बहुत सही बात है, sovereignty है, sovereign socialist, India is a welfare state that takes along the interest of the backward section, for example PM Awas Yojana promises pakka houses to beneficiaries, reflect socialist tendencies। Secular India state maintains equal distance from all the religions, reservation on religious grounds in public, huh? Reservation on religious grounds in public education and employment is not there ना। सर लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे तो है रिजर्वेशन। आपने बोला रिलीजियस ग्राउंड्स पे पब्लिक एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में, रिलीजियस तो ग्राउंड्स। तो ग्राउंड्स तो है ही, मतलब सो प्योरली रिलीजियस नहीं, लैंग्वेज और रिलीजन इज तो आप नॉट। माइनॉरिटी वाली बात करते हैं ना, वो आर्टिकल 30 है वो, पर सर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में तो रिजर्वेशन है, और किसमें है? रिलीजियस ग्राउंड्स पे। मैं समझ सर नहीं पा रहा कोई हूँ। तो ग्राउंड है वो। हाँ,
आर इकोनॉमिकल ग्राउंड्स पे है ना सर, रिलीजियस। मैं समझना चाह रहा हूँ वही। नहीं सर, हम रिलीजियस बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है रिजर्वेशन सिर्फ दो ही ग्राउंड्स पे हो सकती है, लैंग्वेज पे और रिलीजन पे। क्या बात कर रही हो यार? लैंग्वेज पे माइनॉरिटी के केस में वहां पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को आप मौका देते हैं कि अपना इंस्टीट्यूशन चलाएं, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अपने इंस्टीट्यूशन में, जैसे क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है। हाँ, पर ये जो माइनॉरिटी। आप, हाँ, मैंने माइनॉरिटी से कंफ्यूज कर दिया इसको। नो वरीज, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू क्लैरिफाई। हम्म। India is known as the mother of all democracies, free and fair elections in a country with 1.4 billion people. So, sovereign socialist democratic republic. तो आपने बेसिक पूरा का पूरा तो बता ही दिया। तो एडजेक्टिव मेंशन इन द प्रियम्बल, तो वो जो हम बात करते हैं उसके बाद जो है जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, वो भी तो है ना? सर वो नहीं है एडजेक्टिव्स में, उसको नहीं कंसिडर करते इसमें। क्वेश्चन बोल रहा है बिफोर द वर्ड रिपब्लिक। अच्छा, कैन आई हैव अ क्वेश्चन वंस मोर प्लीज? Discuss each adjective attached to the word republic in the preamble. जी। आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस? तो ये जो डिफेंडेबल वाला पॉइंट है, हम्म। जब आप बात करते हैं, वो जो नीचे वाले हैं, एक जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, और वो डिफेंडेबल के सर्कमस्टेंसेस में आ जाएगा। सर वो कैसे डिफेंडेबल करेंगे? वो तो फिर अलग वो हो गए पॉइंट्स या फिर एडजेक्टिव्स अगर बोले तो। हाँ बट बिल्कुल, जब लेकिन फिर इनको एडजेक्टिव की डिफेंड, बात आती अब है। सोवरेनिटी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये पूछेगा कि सोवरेनिटी आज की डेट में डिफेंडेबल है या नहीं? पर सर ईच एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक तो यही हुआ ना। वो तो फिर जस्टिस के जैसे नीचे जो जस्टिस है, सोशल तो पॉलिटिकल। रिपब्लिक है जो आपका, रिपब्लिक में है वो सब, फेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, ये सब रिपब्लिक के ही एडजेक्टिव्स। क्योंकि सोवरेनिटी में क्वेश्चन नहीं उठता, सोवरेनिटी को क्वेश्चन नहीं उठता है कि प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज में आप उसे डिफेंड करोगे नहीं करोगे, क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेकिन जस्टिस की जब बात आती है, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, तो वो आप जरूर लिख सकते हो कि ऐसे डिफेंड हो रहा है। So that is what the point of understanding and debate. I think it's very important to understand. So ये तो सोवरेन हम कैसे नहीं बोलेंगे? सोवरेन क्या आप मतलब सोवरेन पे हमें कोई क्वेश्चन है कि हम डिफेंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या सेकुलर पे हमें कोई क्वेश्चन है? नहीं। ये तो ये तो चीजें जो हैं वो कंप्लीटली वन वे हैं, इनमें डाउट का कोई स्कोप ही नहीं होना चाहिए। हम्म। चलिए आगे। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सीन। What was held in Kohilo case in context? If in this context, what can you say that judicial? Can you say that judicial review is a key is of key importance amongst the basic feature of the constitution? Kohilo case 2007 upheld that provisions added in the ninth schedule after Keshan Bharti judgment will be open to judicial review if violates the basic structure of doctrine. Okay, chaliye. To maintain separation of powers in the function of democracy, to spirit of constitution should remain supreme. Supreme Court reversed the judgment of Berubai case in the Keshavanand Bharti case 1973, stating preamble is part of constitution. To amend the judgments with changing needs with time, ensuring protection of judgment in life. For example, Article 66A of Income Tax Act 2000 now stands repealed to protect freedom of speech and expression. Article 19 via social media revolution. तो आई थिंक बहुत अच्छा फ्लो, लैंग्वेज बहुत सही चल रही है, बेसिक आइडियाज आर विजिबल, and it is coming in the flow also. The only thing what we can say is that whenever we are finishing topics and areas, we if we can bring some more information, that is the only point. I think that is also happening. So a structure is emerging. Did the government of India Act 1935 lay down federal constitution? Did, पहले पूछ रहा है कि था भी कि नहीं था. Laid down the blueprint that had few federal elements picked up by Constitutional Assembly post independence. Okay. Federal features, provincial government and legislature helped to bring the reform via 73 and 74 1992. Right to vote was expanded. As a result, India became the first country to grant residuary powers with the union were borrowed. This is cooperative federalism. Bicameral legislation in provinces implemented for a few states as union and fundamental feature of federalism. Apart from federal features, the unity features also includes RBI Act 1934 as the sole regulator of commercial banking system to ensure stability and uniformity. Federal Court later became Supreme Court of India, laid the foundation of integrated judiciary in India. Therefore, GOI Act 1935 became a guideline. If it is written in a flow, written on the own, I would appreciate the way ideas have come up.
What is a quasi-judicial body? Explain with the help of concrete examples. Quasi-judicial bodies are not the pure judicial institution but have the powers of persecution leading to maximum good governance goal. For example, NGT, Environment Justice. For example, Plastic Waste Management Rules and Extended Producer Responsibility. Competition Commission of India. Scrutinize Google and Amazon to misuse dominant market position. Led to amendment to e-commerce. Rules preventing monopoly industry, protecting consumers, fair market competition. कोशिश हो रही है. Quasi-judicial bodies have the jurisdiction to do the following: pass order in the form of penalties and fine, do investigation to unfold the truth and bring them to the complete justice. For example, NHRC can investigate against human rights violation. However, they remain case specific and not viewed as a court of record like the case of judicial system. Therefore, quasi-judicial bodies can be permanent and ad hoc that work like an extended arm of judicial system in administration set up delivering speedy justice. Well written. Again, I would only say that in quasi-judicial bodies, if we can bring certain landmark one or two, जैसे आपने गूगल अमेजन का दिया, बहुत अच्छा दिया, और एक आध अनकन्वेंशनल भी दे दिया तो आई थिंक काम हो जाएगा. Professor Amartya Sen had advocated important reforms in the realms of primary education and primary health care. What are your suggestions to improve their status and performance? तो अगर नहीं भी पता है तो हमें पता है प्राइमरी एजुकेशन और हेल्थ केयर में इंडिया में क्या हो रहा है और उसके हिसाब से you have to give your own ideas. Advocated scaling the capabilities of poor people through education and healthcare reforms and achieve sustainable poverty alleviation in the long run. Fully advocated DPSP. Wonderful suggestion to improve the status and performance, inclusivity of education and healthcare services. For example, unleash nutrient security priority through midday meal scheme and FHS 5 survey outcome-based approach, assessing the learning outcomes as aided by ACR report to realize demographic dividend. For example, Chennai model. Digitization, the telemedicine for under wider reach and quality healthcare can be integrated with Jan Aushik Kendra. Okay. And increasing GDP allocation to both education, 3% and healthcare. Okay, fine. Therefore, these reforms must be agreed upon political will, financial planning and public-private partnership to maximize gains of welfare for all. अब ये बहुत अच्छा लिखा, लेकिन इसके अंदर वही है, अमृता सेन जैसे कहते हैं कि एक कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर सा बन के आना चाहिए, एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए. तो आप लेके आ सकते हो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कैसे चेंजेस किए, या आपके जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, whether it is stand up India, whether it is make in India, उसके अंदर MSME का जो रोल है, जो DPSP भी कहता है कि प्रोवाइड मैक्सिमम सपोर्ट एंड लीवरेज, और इवन लेबर, यानी जो लेबर है, यानी मिनिमम वेजेस की जो बात दी, वो भी यही करते हैं. अमृता सेन बोलते हैं कि मिनिमम वेजेस होनी चाहिए, और उसके बाद स्टेट का कभी भी स्टेट को जो बेसिक सर्विसेज हैं, वो जैसे फूड सप्लाई है या एजुकेशन है, ये कभी प्राइवेटाइज. खाली एजुकेशन और हेल्थ केयर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा ना, इसलिए एम्प्लॉयमेंट सब कैसे आएगा? नहीं, वो जो बोल रहा है ऊपर लाइए एजुकेशन दोबारा, और हेल्थ वो जो केयर बोल रहा है लास्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट आर योर सजेशंस टू इम्प्रूव, अच्छा इम्प्रूव देयर स्टेटस. परफॉर्मेंस. He advocated okay, fine, very true. He has said a lot of things, but he advocated reforms in the realms of primary education and healthcare. तो हमने जब बोला तो उन्होंने जो आगे लाइए, जब उन्होंने जो बोला कि भाई ये रिफॉर्म लाना चाहिए, तो आपने भी वही बोला है कि रिफॉर्म जैसे इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, आउटकम बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए. तो ठीक है, आई थिंक आप उसमें बस लास्ट में ये कर सकते हैं कि आप मतलब कि दिस शुड बी डन समथिंग लाइक दैट, दिस रिफॉर्म मस्ट बी एडेड बाय पॉलिटिकल विल, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पार्टनरशिप. द लैंग्वेज इज आल्सो गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, बट देन इफ इट इज आस्किंग व्हाट वुड मोर यू विल सजेस्ट, तो यही हो सकता है कि जो पहले चीज हो रही है उसको आपने लिखा, जैसे अब मान लीजिए आप राइट टू एजुकेशन में ही जो सब कुछ है, एंड देन हाउ टू बेटर क्वालिटेटिवली इंप्रूव इट, बस उतना हो सकता है. उसके जो हो रहा है वो लिखा आपने कि अमृता सेन postulated, or you can say he suggested, and the more in this direction this can be done, तो आंसर और मतलब एकदम से फिर वो क्लिक हो जाएगा. चलिए, in Indian governance system, the role of non-state actors has only been marginal. Critically examine this comment. The non-state actors like pressure groups, trade and labor unions, NGOs, women groups have been catalyzing the political stability and maturity of Indian democracy. Instead, they have significant role in governance system in the following way: bridges the governance gap and increases the effectiveness of policy measures. In revision of electoral roll and voter awareness events like SCVP app, organization of Aadhaar camps and ration card camps, increasing penetration to all, which is where government presence is less in local areas, represents the concerns of people and collective unions, Bharatiya Kisan Union. At the same time, non-state actors related concerns to act as hindrance in governance. आप मणिपुर का एग्जांपल दे सकते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. Pushing foreign agenda in India, MHA banned approximately 1,100 NGOs. Misinformation is spread like in the case of Red Corridor region of Chhattisgarh, act as a medium of money laundering to transfer funds to tax havens.
Therefore, non-state actors have been a great proponent of good governance in India. आप जैसे नॉन स्टेट एक्टर में आप ये भी लेके आ सकते हो, जो सिविल सोसाइटी है वो भी एक नॉन स्टेट एक्टर है। जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल सोसाइटी बात बात पे लिखती है, मोदी जी को लिखती है, सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर लिख देती है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये मत करो। 100 लोग साइन करके दे देते हैं। हम्म। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। और क्रिटिकली एग्जामिन कह रहा है, तो आप फिर आपने अच्छा लिखा क्रिटिकली, मतलब ठीक है, अभी ब्रेक नहीं कहूंगा आंसर में मैं, लेकिन जब वो एक सेंटेंस में बोल रहा है, एक ही सेंटेंस में उसने पूछा, तो मतलब हमारा भी आंसर कायदे से आइडियली स्पीकिंग एक ही फ्लो में सारा आ जाना चाहिए। क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट को ही क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, आपने ठीक किया पूरा। और ब्रेक भी ऐसा कोई विजिबल नहीं है, पर और अगर स्मूथ हल्का सा हो सकता है तो हमें उस पर कार्य करना चाहिए। चलिए, effectiveness of government system at various level and people's participation in government system are interdependent. Again, same kind of question but in different words. तो हर साल आएगा ये। Effectiveness of government system at various level, center, state, पंचायत, municipal, and people's participation in governance system. तो सिर्फ इलेक्शन नहीं है, वो 10 तरीके से है। इवन मोदी जी जो अपना नमो ऐप है, इवन मन की बात है, आप कोई लेटर भी पीएमओ में अगर 1000 लेटर भी आ रहे हैं, वो भी पीपल पार्टिसिपेशन है। या फिर डीएम भी बोलता है मेरे पास जन सुनवाई होगी, सब कुछ जन सुनवाई दरबार लगता है, एक शी बॉक्स लगा दिया जाता है पुलिस स्टेशन में, उसके ताले की चाबी एसीपी डीसीपी के पास है, वही आएगा वही ताला खोलेगा। ये है मोरालिटी खतरनाक वाली। तो ये सब आपको लेके आना चाहिए। देखते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। थोड़ा साइंस हो गया, आप लिखते हैं दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, maturing democracy और deepening of democratic principles. Opposite attract each other, तो ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बात फिट हुई नहीं। नॉट वर्क इंडिविजुअली, मजा नहीं आया। आप इसको पार्लियामेंट्री भाषा में ही लिखते जी सर। कि डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर आप कहते हैं कि भारत का किसान, द लास्ट मैन, द लास्ट सोल्जर स्टैंडिंग एट द गार्ड बॉर्डर, और इवन द वन हु इज नॉट हैविंग एक्सेस, वो जब 26 जनवरी मनाता है, वो जब 15 अगस्त का झंडा लेके बोलता है भारत माता की जय, तब बात होती है ना भारत माता की जय एक्चुअली। आप शहर के बीच में पतंग उड़ा के, और वो भी चाइनीज सिंथेटिक धागे वाली, तो वो तो नहीं है। तो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट अंटिल गवर्नमेंट एश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अंटिल गवर्नमेंट एश्योर्स, फिर वही बात है। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप में आप ये कहिए कि when government brings in all the instruments in transparent way, people also respond in a much more jubilant way। ये ऐसे है जी। हमारे ईसीआई के लिए कभी नहीं बोला गया, पॉलिटिकल पार्टियों ने किए हैं जो भी किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 1995 के बाद जब उसके रियल रोल को जब रेवोल्यूशनाइज किया टीएन सेशन सर ने, तो और ज्यादा मैच्योर हो गई हमारी गवर्नमेंट सिस्टम, हमारी डेमोक्रेसी। तो वो लिखना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी, आप ये नहीं ऐसा दूसरा जैसे आपने लिखा ट्रांसपेरेंसी द की टू प्रमोट ईज ऑफ गवर्नेंस, नहीं, आप ये लिखिए उसकी जगह कि जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है, दे वर प्रैक्टिकली अप्लाइड in villages and at the in urban and rural areas as an experiment, largest experiment in the world, and it went on to get success in so many ways, still it is going on। समझे आप? तो इंटरडिपेंडेंट है। कानून बनाया जनता के लिए, अगर कोई कानून बना है या जनता ने मजबूर किया है सरकार को कि हमारे लिए कोई कानून बनाए, चाहे वो ग्राम न्यायालय ही हो, उसका हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा वो हुआ है। जैसे आपने देखा करप्शन रिड्यूस्ड। फिर जैसे एट एवरी लेवल की बात है, तो वही वाली बात है, वेलफेयर अप्रोच की बात है कि अगर मान लीजिए जैसे व्हाट आई कैन से इज फॉर एग्जांपल इन हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में भी, जैसे एग्रीकल्चर का एग्जांपल ले लो, अगर उसके अंदर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, गवर्नमेंट ने उसको पुश किया है, तो लोगों ने भी मतलब जो किसान है उन्होंने भी उसको उस चीज को वो किया है आगे, तभी हम भारत के आज की डेट में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सो मेनी थिंग्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड इवन व्हीट एंड सो फोर्थ। तो एक एक एग्जाम्पल लेना है हर जगह, एक 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 एक, क्योंकि वो कह रहा है, वो ये बात कह रहा है कि हर लेवल पे कह रहा है ना। तो अगर मान लीजिए भारत में स्वच्छ भारत की बात है, तो अब सुपर क्लीन सिटीज की बात आने लगी है, सुपर परफॉर्मेंस की। इंदौर है, ये हर राज्य, हर शहर चाहता है कि मैं नंबर 1 पे आऊं। तो फुलफिलमेंट ऑफ गोल्स, अब आपका अप्रोच इसमें दूसरा हो गया, आपने मतलब इसमें कंडीशनल अप्रोच बना दी।
क्वेश्चन ये हो रहा था कि वो कहना ये चाह रहा था कि जब जब, अगर मैं और सिंपल भाषा में बोलूं, कि effectiveness of any preparation for the civil services at various level and mentor aspirant relationship in a system are interdependent. Discuss their relationship in this context. अब बोलो क्या लिखते हैं? सर रिलेशनशिप के हिसाब से और इंटरडिपेंडेंस के हिसाब से मैंने इसको ऐसे लिखा है कि गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है तो उसमें पीपल पार्टिसिपेशन नहीं, होने से ही वो इफेक्टिव हो गया फिर सक्सेसफुल हुआ सक्सेसफुल। है बिल्कुल, लेकिन आपने क्या बोला? जैसे आपने बोला अनटिल गवर्नमेंट एश्योर्स। फ्री एंड फेयर नहीं नहीं, रिलेशन। अनटिल नहीं, गवर्नमेंट को एश्योर करना ही पड़ेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मजबूरी है हम्म। उसकी। तो हाँ अनटिल गड़बड़ होगी, तो मोड़ लो। ठीक है ना? मतलब ये तो नेगेटिव जा रहा है, हाँ। जो इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवनेस की बात हो रही हम्म। है। जो लीकेज है सब्सिडीज में, उसको प्लग किया गया, तो लोगों ने भी फिर बढ़ बढ़ के डाला ना। अगर हम्म। डिजिटल मोड भी आया है, अगर सरकार कहती है कि ऐप के ऊपर प्रॉब्लम डालो, तो क्या प्रॉब्लम नहीं जा रही है? हाँ बारिश वही ना। आती है, हम्म, बारिश आती है तो लोग कॉल करते हैं ना ऐप पे, जी। और पीपल बिलीव दैट पुलिसमैन विल बी स्टैंडिंग इन हम्म। केस ऑफ फ्लड, इन केस ऑफ ट्रैफिक, एवरीवेयर। तो वो क्या है? इंटरडिपेंडेंट हो गया, पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस सिस्टम का एग्जांपल हो गया ना वो। तो हाँ तो वही थोड़ी रिलेट, लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए सर। बिल्कुल लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, और उसके बाद अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उठने चाहिए। चलिए, in the integrity in the integrity index of transparency international, India stands very low. Discuss briefly the legal, political, economic, social and cultural factors that have caused decline in public morality in India. Public morality is an indicator of the health of democracy and welfare is quotient transmission to people affected by multiple, बिल्कुल सही बात है, factor that led to decline in public morality. Complexity of laws with colonial roots. As a result, government has initiated decolonization of laws through overhaul of criminal laws. बहुत ठीक बात है, safe है. Red tape and rampant corruption during pre 1991 phase. Digital India mission revolutionized the governance system in the past decade. बहुत अच्छा sentence है ये भी. चलता है attitude that encourages bribes have been plugged by EFIR, e-courts and EITR. Earlier citizens feared the system, but that has now transitioned to partnership model between government and citizens. आपको यहाँ पे whistle blowers act भी लेके आना चाहिए. The various corrective and reformatory measures suggested by ARC report, digitization to increase transparency and the public trust in the government, simplification of laws, labor code, aware of rights, Supreme Court judgments in vernacular language using AI. Therefore, the trend has reversed over the time with consistent government effort to promote ethical government. तो एक अप्रोच है आंसर के अंदर, एक फ्लो है, तो आई थिंक दिस इज टू बी अप्रिशिएटेड, एक फ्लो में है। बाकी तो ये क्योंकि वो कह रहा है सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, तो एक तरीका इसका ये था कि आपने सारे सारे उठाए और एक एक करके सबको लिख दिया, क्योंकि जी। कल्चरल फैक्टर की बात भी कर रहे हैं। तो कल्चरल फैक्टर वही है कि भाई ठीक है, मेरा चाचा ये है, थानेदार है, फलाना है, तो ये जो माइंडसेट है ना, ये मेक्स अ लॉट ऑफ डिस्करेजिंग, इट ब्रिंग्स अ काइंड ऑफ ओपेकनेस इन द होल सिस्टम। हम्म। तो या तो एक साथ लिखिए जैसे लिखा गया है, बस मेक श्योर दैट कि हर एलिमेंट उसका विजिबल हो जाए, या फिर अलग अलग तोड़ने से अच्छा, आई बिलीव दिस इज द बेटर वे। Has the Indian government responded adequately to the demands of LPG in 1991? What can the government do to the responsive to this important change? Again LPG आया, तो आप यहाँ पर क्योंकि ये पेपर 2 का है, तो आपने डीपीएसपी की बात की, बहुत अच्छी बात है, आप ये बात बोलिए। डीपीएसपी में भी आप कैसे कि it talks about how distribution of resources must be there. There must not be concentration of wealth. So adequacy of reforms can be assessed. Full current account convertibility allowed by the government. It resulted in India being first country to record 100 billion in remittances inflow. That too also of marginalized sections basically, or all of them are not in white collar job. Many people who are sending remittances, they are in the blue collar job, basically in the Middle East. तो वो बात आपके फिर constitution को link करती है. Liberalization of norms led to India becoming the FDI capital of government took parallel measure to promote ease of doing business. So single window portal, Ministry of Corporate Affairs, leading to, फिर इसमें क्या हुआ, इसमें भी आप बोलिए कि MSMEs या जो इनफॉर्मल इकोनॉमी हमारी इतनी बड़ी है, उस तक हम पहुंचा, उस तक सुख पहुंचा, लाभ पहुंचा। तो यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो फंडामेंटल राइट्स की बात अगर है, या उसके आगे आप डीपीएसपी में जो बात करते हो, उसको वहां तक मतलब उनको महसूस हुआ कि हाँ ऐसा है, ये बहुत बड़ी बात है, वो लेके आना है। इंसेंटिव्स थ्रू फिस्कल पॉलिसी टू बिकम की प्लेयर इन ग्लोबल सप्लाई चेन, तो सही बात है क्वेश्चन पेपर 2 में, इसलिए हम पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स की कवर के अंदर भी हमें पॉलिटी की बात करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर आप बात करिए कि कैसे अगर बोला जाए तो जीएसटी जैसे अब रिफॉर्म आए, जैसे आपने बाद में बोला भी है, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स थ्रू डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी आईबीसी 2016 हैव अट्रैक्टेड ग्रीन फील्ड
investment as digital India mission has been a landmark step to increase the efficiency of reforms. तो बस इसको cover इसको आपको parliamentary बोलना पड़ेगा, parliamentary panel, you know, और उसके बाद people's aspirations reflected through parliament. लोगों के बिना उसके क्या हो सकता है? लोग जो चाहते हैं वो पार्लियामेंट करती है, सरकार वही करती है जो देश चाहता है। देश की जो सरकार वो करती है जो देश चाहता है, और देश कौन है? वो लोग हैं। तो आपको यहाँ पे बस जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फसाड है वो लेके आना बहुत जरूरी है। बाकी तो आई थिंक इट इज वेरी वेल रिटन। तो बात करते हैं भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली में। जब हमने बात की परिवर्तन के ऐसे दौर से गुजर रही है कि अंतर विरोधों और विरोधाभास भरा प्रतीत होता है। ठीक है, वैचारिक, नैतिक और मौलिक सिद्धांतों की भिन्नता के कारण एक परिवर्तनशील रही। ठीक है बात, भारत की विविधता दर्शाती है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया की डाइवर्सिटी दिखाती है, इंडिया की लीडरशिप भी दिखाती है। वैकल्पिक 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देने से नए संघ का निर्माण करना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये सही बात है कि वैचारिक पहले था। मौलिक सिद्धांतों की अगर बात करें 1970 के बाद इंदिरा गांधी द्वारा कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करना, नई पुरानी कांग्रेस का विभाजन। ओके, लेकिन ये बात कर रहा है कि अभी रिसेंट में कैसे क्षेत्रीय पार्टियों का उभरना, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम कम्युनिस्ट पार्टी, प्रथम बार गैर कांग्रेस 1976 में राइट विंग उभरती हुई पार्टियों का निर्माण, वर्तमान समय में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ उभरते क्षेत्रीय समूह, जो हमने बात भी की थी रीजनल पार्टीज की, और उनका स्वतंत्र जो है। तो विरोधाभास में आपने क्या लिखा? भारत में क्षेत्र विशेष में उभरती पार्टी के कारण बहुदलीय प्रणाली, जहां राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल के गठबंधन सरकार बनती है। आई थिंक वंडरफुल एग्जांपल कि कैसे आरजे मतलब कैसे जो है आरएलडी जैसी पार्टी, और वो भी फिर एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ के पावर में आती है। स्वतंत्र प्रभाव से उभरते प्रतिनिधियों की वैचारिक अस्वस्थता के कारण पद के लिए दल विशेष से जुड़ना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी, कि कैसे मुझे पावर चाहिए तो चंद्रबाबू नायडू एनडीए में भी आ जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू यूपीए में भी आ जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू गवर्नर भी बनवा देंगे, चंद्रबाबू नायडू मिनिस्टर भी ले लेंगे। तो एक एग्जाम्पल है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। दल बदल की समस्या की प्रवृत्ति में तीव्रता लाना, व्यक्तिगत लाभ के लिए जो स्पष्ट विचारधारा और चुनाव के मुख्य भिन्न, बिल्कुल सही बात है। पार्टी की विचारधारा के आधार पर सरकारी संस्थानों में होने वाले परिवर्तन, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, बहुत ही यूनिक पॉइंट्स हैं, बहुत ही वैलिड पॉइंट्स हैं। तो पहले जो हमने लिखा था वो एक स्ट्रक्चर था, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाट वी कैन अप्रिशिएट। कैग द्वारा वित्तीय नियमों के अंतर्गत ऑडिट किया जाता है, उन्हें संसद द्वारा बहुमत के आधार पर बनाया जाता है, जो अधिकार के आगे बढ़ना नहीं है। कैग अपने लेखा परीक्षण से सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक कुशल प्रयोग निश्चित करता है, सरकार के व्यय पर नियंत्रण सुनिश्चित करता है, सरकार को अपनी नीति कामकाज की स्वयं जांच करने का अवसर प्रदान करता है, समावेशी सरकार व्यय और अपनी नीति की जांच करने का अवसर पर समावेशी विकास को सुनिश्चित कर वित्तीय परिसंवाद को मजबूत अप्रत्यय रूप के समय अपने तर्क द्वारा सरकार को जागरूक करता है। तो पॉइंट बहुत अच्छे हैं जो हमने ऊपर देखे उन पॉइंट की लाइन में, लेकिन फर्स्ट आंसर से हम जरूर कुछ ले सकते हैं। प्रस्तावना पे आ जाते हैं। जब हमने प्रियम्बल की बात की थी, गणराज्य शब्द जो लोकतंत्र की मूल भावना को दर्शाता है, जो संविधान का शासन अनुपालन करता है। इसी कारण भारतीय संविधान में गणराज्य के संप्रभुत्व, गणतंत्र, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र राज्य। तो आपने भी वही संप्रभु इकोनॉमिक, लेकिन आप लेके आए हो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी स्टडी, समाजवादी। चलिए नीचे चलिए, समाजवादी और असमानता का करने सिद्धांत, पर पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को बराबर समान, लोकतंत्र। आप क्वेश्चन पे आइए हिंदी के दोबारा। हिंदी में क्वेश्चन है, उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए, क्या वर्तमान परिस्थितियों में भी वे प्रतिरक्षणीय हैं? तो जिस देश में, अगर मान लीजिए हमारे देश में, नीचे चलिए, अभी आपने रक्षा करने की बात कहाँ की? अगर आप संप्रभुता पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, समाजवाद पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, चलिए आगे, और पंथ निरपेक्षता पे क्वेश्चन उठा रहे, लोकतंत्र पे क्वेश्चन उठे, तो रह क्या गया? तो क्वेश्चन इज एक्चुअली रॉन्गली अंडरस्टूड हियर ऑल्सो। चलिए आगे, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक परिसंघीय संविधान निर्धारित किया था? चर्चा कीजिए। बहुत अच्छा लिखा गया था इंग्लिश में, तो हिंदी में हम देखते हैं हमें कुछ और माइक्रो पॉइंट्स मिलते हैं क्या। 70% भाग 1935 के अधिनियम में संग्रहित है, जो 1935 की संघीय विशेषताएं किंतु ब्रिटिश शासनकारी नीतियों के कारण प्रांतों में पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। भारतीय संविधान के परिसंघवाद 1935, संघ का ढांचा, चुनाव करने की प्रणाली, वित्तीय समावेशीकरण, अप्रत्यक्ष रूप से मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी का होना, द्वितीय शासन की प्रणाली, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पृथक्करण। तो इंग्लिश में बहुत अच्छा था और हिंदी में सारे पॉइंट्स हुए, एक आध पॉइंट यहाँ से वहां जा सकता है, वहां से तो आना ही चाहिए। और क्वासी जुडिशियल ऐसा निकाय जिसका प्रशासन द्वारा कुछ विवादों को सुलझाने, निर्णय लेने, कुछ क्षेत्रों में दंड देने के अधिकार। बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन इज वेरी गुड, किंतु पारंपरिक न्याय प्रणाली का हिस्सा नहीं होते। निर्माण न्यायालय के बोझ को कम करने के लिए किया जाता है। शक्तियों में कुछ मामले न्यायालय जैसी होती है, किंतु आदेश बाध्यकारी नहीं होते। नेशनल ग्रीड ट्रिब्यूनल, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल फेडरेशन,
फेडरेशन की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। लोक अदालत सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर इन न्यायालयों को कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई करने का अधिकार होता है। भारतीय शासकीय तंत्र में गैर राजकीय कर्ताओं की भूमिका सीमित ही रही है। समालोचनात्मक यानी आलोचना भी, लेकिन समालोचना तो क्रिटिकली एसेस कीजिए। तो भारतीय शासन प्रणाली में भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से जटिल है, जटिल की स्पेलिंग गलत है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से गैर राजकीय कर्ताओं की भूमिका गौण है, किंतु सम सूक्ष्म अवलोकन करने पर विभिन्न स्थानों पर नौकरशाही और गैर राजकीय कर्ताओं की भागीदारी नीति कार्यान्वयन और लक्ष्य की पूर्ति के लिए की जाती है। विभिन्न एनजीओ, दबाव समूह, यूनियन संघ द्वारा नीतिगत बदलाव और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। बहुत अच्छा लिखा। और उसके बाद आपने बोला कि पर्यावरण संबंधित महिला सशक्तिकरण के लिए मुद्दे, मानव अधिकार के तहत मैनुअल स्कैवेंजिंग सैनिटेशन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो ठीक है, और अच्छा हो सकता है, लड़ाई जारी है। विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाव तथा शासकीय तंत्र में जन सहभागिता अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। संबंध में चर्चा कीजिए। क्या लिखा आपने? संबंध लोकतांत्रिक भावना को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। लचीलेपन तथा सरकार और जनभागी की सूक्ष्म विविध प्रणाली है। निश्चित समय अवधि में चुनाव होने, शासकों का जवाबदेह होता तथा जनाधारी लोगों द्वारा शासन है। पंचायतों में भागीदारी, ग्राम सभा पंचायत के सबसे निम्न स्तर, किसी योजना के 18 उम्र से कम की जन भागीदारी। आरटीआई नीति निर्माण कार्य में प्रत्यक्ष भागीदारी, सार्वजनिक धन या उचित प्रयोग और व्यवहारिक बनाए रखना, जवाबदेही और पारदर्शिता। ठीक है, गुड पॉइंट बट नॉट वेरी प्रैक्टिकल एज वी हैव डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जब हम बात करते हैं, जब बात हो रही है भारत में कैसे सार्वजनिक नैतिकता का ह्रास हुआ है, तो राजनीतिक कारक आपने दिए। व्यक्तिगत लाभ से ऊपर रखकर धन जुटाना, कानूनों को ठीक से पालन न करने का, निलंबन की प्रक्रिया या अति जटिलता होना, सामाजिक कारण व्यवहार में परिवर्तन न आना, अपने कार्यों को जल्दी करने के लिए भ्रष्टाचार का प्रयोग करना, ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करना, सांस्कृतिक भाई भतीजावाद। ठीक है, आपने कोशिश की पूरा आंसर, लेकिन बन नहीं पाया। कोशिश अच्छी है। क्या भारतीय सरकारी तंत्र ने 1919 में उदारीकरण, निजीकरण की मांगे? और हमेशा ध्यान रखो, पॉलिटी है ये, पॉलिटी है, तो पॉलिटी और गवर्नेंस को आपको लेके आना पड़ेगा। कोट करो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को, कोट करो आप यूनाइटेड नेशन की किसी रिपोर्ट को, कोट करो आप जो है पुंची कमीशन, सरकारिया कमीशन, उसके बाद जो है कितना कुछ है बताने को। मोदी जी के मन की बात को कोट कर दो यार, और कुछ नहीं कर सकते तो है? कितना उन्होंने डेमोक्रेसी और सारी चीज को किया। हमारे राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति जी के किसी भाषण का एक पॉइंट लिख दो कि राष्ट्रपति जी प्रेसिडेंट एड्रेस जो लोकसभा संसद के दोनों सदनों को देते हैं, 26 जनवरी को बोलते हैं, 15 अगस्त को बोलते हैं, साल में 2-3 बार तो बोल ही रहे हैं। कुछ तो लेके आओ। तुम भी नहीं लिखोगे और जनता को तो इंटरेस्ट है ही नहीं, जनता को तंदूरी नाइट सुनना है, तो रह क्या गया फिर। 1991 में उभरी वित्तीय चुनौती का सतत और समावेशी विकास प्रणाली और एलपीजी सुधारों को अपनाया गया। लाइसेंस राज समाप्त हुआ, बोरिंग है, आगे चलो भाई। भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक द्वारा सतत सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना, प्रतिबंधों को कम किया गया। वर्तमान समय परिवर्तन, पीपीएम के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। पीपीएम पीपीएम क्या होता है? सर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से सकती जी सर। PPP। पीपीपी तो लिख समझ भी आता है, पीपीएम क्या हो गया ये? सरकारी विभागों की निजी भागीदारी बढ़ाना, नियम में बदलाव। तो इसका और गहराई आना चाहिए, जैसे कि ऊपर आंसर में था, लेकिन बस वही बात है, थोड़ा गवर्नेंस की तरफ पुश होगा। कैसे जुडिशरी ने कुछ बोला, जुडिशरी का भी तो बहुत बड़ा रोल है एलपीजी के रिफॉर्म्स को करने में। सरकार बोलती रहती है, अभी सरकार जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे भी सरकार मतलब कोर्ट बोलेगा, कोर्ट जो है वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड भी कोर्ट बनवाएगा, कोर्ट जो है वो एयरटेल और जियो और इन सबको बोलेगा भाइयों माल भी जमा करो, रेवेन्यू के लिए भी कोर्ट ही सब कुछ करता है। तो वो सब कहाँ जाएगा? गवर्नेंस वाले आंसर में नहीं लिखोगे तो कहाँ लिखोगे उसको? तो गवर्नेंस का पेपर है, तो आपको जबरदस्ती गवर्नेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा लिखना बड़ा आसान है। आसान का अर्थ है लिख तो सकते हैं, लेकिन फिर हम, वही बात है कि आप अगर गब्बर के इलाके में हो तो गब्बर डिसाइड करेगा ना कि कितने आदमी थे। तो बताइए मानसी, पहले आप क्या चाहते हैं? सर ये कि टोन एक तो पॉलिटी का ही होना चाहिए, उस तरफ ही ओरिएंटेशन होना चाहिए, बाकी पॉजिटिव टोन होना चाहिए। जैसे पॉलिटिकल पार्टी वाले क्वेश्चन में वो थोड़ा सा नेगेटिव पोर्ट्रे हो रहा था, तो पॉजिटिव आप टोन में। गलती बताइए, आप क्रिटिकल गलती बताइए, लेकिन ऑथेंटिक बताइए। हाँ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म किया क्योंकि वो ओपेक था, पब्लिक ट्रस्ट के ओपेक था वो। आप ये लिखो ना, जनता को जानने का अधिकार था कि उसको पैसा किसने दिया। जी। पॉलिटिकल पार्टी का कहना था उन्हें क्या मतलब, उन्हें क्या मतलब, उन्हें क्या मतलब। हम्म। हर पॉलिटिकल पार्टी बोलती है हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एक इंटरनल डेमोक्रेसी है, लेकिन लोगों को तो नहीं पता ना कैसे हो रहा है वो। जी।
जब थोड़ा और हमारा डेमोक्रेसी मैच्योर हो जाएगा तो पॉलिटिकल लीडर घर के बाहर खड़े होके ऐसे करके, जैसे इंग्लैंड में होता है, आपको बोलना पड़ेगा। अभी हम्म। हमारे यहाँ तो कोई ऐसे बैठ के डिबेट नहीं होता ना, जैसे अमेरिका में हो रहा है प्राइम टाइम डिबेट। क्यों नहीं होता? जी। क्योंकि उतना लेवल ही नहीं आया है। अभी तो हमारे यहाँ जैसे चुनाव आता है तो एक तरीके से वो आदमी को अपनी तरफ खींचने की तैयारी होती है। हम्म। कहते हैं चुनावी मौसम आ जाता है यहाँ तो। जी। तो आपको ये सब प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, बहुत ही क्लैरिटी के साथ, तो ही हम कह सकते हैं कि हम जस्टिस करेंगे अपने काम के साथ। और फिर उसके बाद तो अगला स्टेप तो अगले स्टेप से पता लगता है। पहले अपना बेस्ट किया जाए, हमारा हमेशा ही मानना है। अगर कोई कमी रहती है तो उसको पहले से ही सोच के पूरा किया जाए और तैयार रहा जाए। हाँ जी। अगर इंडिया भी मतलब आगे तक की पूरी चीजों के लिए तैयार रहता है तो वी आर ऑलवेज इन सेफ जोन। दैट्स व्हाट वी से ना। भाई जी हमारे सर। जो एयरफोर्स के जहाज हैं वो 20 साल तक जब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तब बात बनती है। हाँ जी। तो आप और कोई पॉइंट बोलिए। सर ब्रॉड तो यही है। ओके, दिव्या। जी सर। सर, जो रिपब्लिक वाला क्वेश्चन था सर, किस तरह से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं सर, उसको समझना है। और इंग्लिश वाले क्वेश्चन से जो पॉइंट्स हैं वो लेकर आने हैं सर, डाटा के साथ से। इंग्लिश वाले आंसर्स के पॉइंट नहीं जा रहे, इंग्लिश वाले आंसर जो सोच बता रहे हैं सोच, हाँ उसको जी अपनी सर। सोच को बनाना है। जी सर। इंग्लिश के आंसर भी एक सोच का प्रतिबिंब है। जी। अगर इनको भी ये आंसर दोबारा अभी मैं दे दूं और 1.5 घंटा दे दूं तो ये आंसर ऐसे नहीं लिख पाएंगे, कुछ और लिखेंगे। हाँ दूसरा one। सो बिफोर वी वाइंड अप, तो हाउ डू यू रेट दिव्या आउट ऑफ 10? सर अपने आप को सर, सेशन को सर, किसको सर? नहीं नहीं नहीं, आप अपने क्वेश्चंस को रेट कीजिए। सर अपने क्वेश्चन को सर, 4। हाँ, 3.1 तक कह सकते हो आप बताइए मानसी। और 5 तक बोल सकते हैं। 4 to 4.25 तो जाएगा ही जाएगा कम से कम, हम्म। बिकॉज इट्स ऑलवेज एवरेज आउट। हाँ जी। ज्यादा आ जाए कोई गम नहीं। हाँ। एज वी हैव सीन, हमेशा एक आदमी पेन बेचता है, खो जाए तो गम नहीं। हम्म। इतनी कीमत कम होती है कि आदमी कहता है कि खोने का गम नहीं। और क्या था पहली लाइन तो मैं भूल गया हूँ। आप लोगों ने नहीं सुना ऐसा कुछ? अच्छा, ओके। न्यू जनरेशन, आई कैन से सो, आई एम आल्सो बिलोंगिंग टू द सेम, बट देन मैंने सुन लिया। So thank you very much for such an interactive and meaningful ideas in the session. Let's make all the programs meaningful and successful with Ansar Gari. Thank you very much.